This is the Amresh NEET of Amresh Harsh Academy and crash and revision course for batch Purusharth. And you know, this is the chapter number 14A, oscillations. And you know, this is the lecture number 2. My name is Amresh Chaudhary and calling name is Harsh. Today I will discuss the topic and subtopics are Amresh questions. इसमें हम लोग अपने टाइप के क्वेश्चंस करेंगे. तो you know, first question is here. X and Y displacements of a particle are given as xt is equal to a sin omega t. ध्यान देना बेटा. xt is equal to a sin omega t. And you know, yt is equal to a sin 2 omega t. क्लियर है? अब इसको ब्रेक कीजिए. sin 2 थीटा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? 2 sin थीटा इनटू cos थीटा. तो 2a sin omega t इनटू cos omega t. You know, अब a sin omega t को आपने x कहा, तो I can write here y is equal to 2x. cos omega t का क्या फॉर्मूला होता है? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी is equal to 2x under root 1 minus x square upon a square. Yes or no? Yeah. At t is equal to 0, x क्या होगा? वो भी 0 होगा. y क्या होगा? इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. y is equal to also 0. You know, at t is equal to plus minus a by 2. तो x इसमें क्या होगा और y क्या होगा? तो देखो, जब t इज इक्वल t इज इक्वल नहीं, x इज इक्वल टू प्लस माइनस a by 2, ये लेना ठीक है. तो y क्या होगा? a by 2 एंड 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन 4 1 अपॉन a स्क्वायर. कट कर दीजिए. तो आंसर इज हियर y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 अपॉन 4. तो यू नो रूट 3 अपॉन 2a. नाउ at x is equal to plus minus a, then y is equal to, ठीक है, x is equal to y क्या हो गया? 0. इसका ग्राफ देखो, जब t 0 है तो x भी 0 है, y भी 0 है. माना यहाँ पे एक ये वाला ग्राफ लग रहा है और एक d लग रहा है. b and c is cancel. फिर चेक कीजिए, x is equal to a by 2, y is equal to root 3a by 2. तो x is equal to a by 2, then y is equal to root 3a by 2. देखिए ये वाला हो रहा है नेगेटिव, ये वाला आ रहा है. x is equal to प्लस माइनस a, y equal to 0. देखिए ये वाला पॉइंट आ रहा है. ठीक है, ये तो नहीं हो रहा है. then your answer should be a number. Next, the displacement of an object attached to a spring and executing SHM given x is equal to 2 into 10 to the power minus 2 cos pi t in meter. The time at which the maximum speed first occurs is what? You know, x is equal to, समझो पहले, 2 into 10 to the power minus 2 cos pi t. ठीक है. अब हमें मैक्सिमम स्पीड निकालना है. तो वेलोसिटी, मैक्सिमम स्पीड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले डिफरेंशिएट कर देते हैं, v इक्वल टू dx by dt, तो वेलोसिटी आ जाएगा. तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन. तो यू नो माइनस 2 पाई, ठीक है, इनटू 10 टू द पावर माइनस 2 साइन पाई टी. वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम, ठीक है, will be maximum when sin pi t is equal to maximum. Yes or no? sin pi t maximum कब होगा? जब वो 1 होगा. इसका मतलब है pi t is equal to क्या हो गया? pi by 2. 1 जो है sin pi by 2 की वैल्यू होती है. pi कट t is equal to half, that is the 0.5 second. Option should be number. Yes, sir. Next, if a simple harmonic motion is represented by d2x upon dt square plus alpha x is equal to 0, then its time period is what? First one, d2x upon dt square is equal to minus a into x. Yes. अब d2x by dt square क्या है? एक्सीलरेशन है. ठीक है.
इसको या तो अल्फा या इसको ऐसा करते हैं, ये हम लोग अल्फा ये लिखा हुआ है, अल्फा कर देते हैं इसको, ठीक है। तो ये एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू माइनस अल्फा इंटू एक्स, Yes, sir. टाइम पीरियड t इज इक्वल टू क्या हो गया 2 पाई अंडर रूट x अपॉन a, तो यू नो 2 पाई अंडर रूट x अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a which is the alpha into x, x cut, then your answer is 2 pi upon root under alpha. Answer should be B number. Yes, sir. Next, a coin is placed on a horizontal platform. ठीक है, ये एक horizontal platform है, इसमें coin रखा गया है इस तरह से, which undergoes vertical simple harmonic motion of angular frequency is omega. The amplitude of oscillation is gradually increased. The coin will leave contact with the platform for the first time. ठीक है, देखो जब इसका एक्सीलरेशन मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है, तो इक्वल टू जी हो जाएगा, यस और नो? अच्छा, एक्सीलरेशन मैक्सिमम होगा तो इक्वल टू जी, हाँ। जी से ऊपर तो हो नहीं सकता है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम एक्सीलरेशन इज इक्वल टू जी। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, ए ओमेगा स्क्वायर, या जिसको अल्फा ओमेगा स्क्वायर बोल सकते हो, इज इक्वल टू जी। देन एक्सीलरेशन इज इक्वल टू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर, यस यस और नो? यस। तो यू नो यहाँ पे जो एक्सीलरेशन मैक्सिमम है, ये कैपिटल है, ये जो है ए है, ठीक है, ये तो एम्पलीट्यूड है ना, ये एम्पलीट्यूड है, ठीक है, हाँ। ए इज Yes. योर एम्पलीट्यूड। मैंने एक्सीलरेशन बोला, तुमने हाँ कह दिया, इसलिए मैंने फिर से इसको रिमाइंड कराया तुम्हें। अच्छा, एक्सीलरेशन मैक्सिमम है, ठीक है, ये हाँ। मैक्स जो लिखा है मैंने, ये एक्सीलरेशन की बात की है मैंने, ये मैक्स है, हाँ। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जिससे कंफ्यूजन कंप्लीट हो जाए। ओके। Acceleration maximum is equal to g, then a omega square equal to g, then a equal to g upon omega square. Then your answer ये should be एम्पलीट्यूड है, for an B. amplitude of g omega square, B number. यस सर। Next question. In a simple harmonic oscillator, ठीक है, at the mean position, कहता है काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। गलत। देखिए जब yes, भी ये गलत। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है तो यहाँ पे आपके पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, हाँ, और पोटेंशियल में, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। हाँ, वो एज पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। तो आंसर देख लीजिए कौन सा है, सी नंबर, काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एंड पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। यस। For a simple pendulum, a graph is plotted between its kinetic energy and potential energy against its displacement d. Which one of the following represents this correctly? ठीक है, graphs are systematic and not drawn to the scale. ठीक है भाई, तो काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, याद है? हाफ m ओमेगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ठीक है, या x स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ एक्स जो है वो डी है इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर डी स्क्वायर y स्क्वायर या d स्क्वायर, हाँ। एट डी इज इक्वल टू 0, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू 0 स्क्वायर बिकम 0। एंड जब पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इस टाइम पे, टोटल या मैक्स, यू नो इट इज द मैक्सिमम, ठीक है। हाँ। नाउ एट डी इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, इसका मतलब है यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं, लोग कैपिटल ए लिख देते हैं, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, ये एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं। तब क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी जब एम्पलीट्यूड के इक्वल है तो वो मैक्सिमम, एंड काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम। यस सर। यस और नो? यस सर। 0, देन मिनिमम इज हियर 0, तो कौन सा कर्व इसमें सही होगा, ठीक है। तो पहले देखिए, पक्का पता चल रहा है कि कर्व जो है वो तो पैराबोलिक होगा जी, हाँ वो तो समझ रहा है, लेकिन इसमें देखिए डी नहीं होगा ना, ये नहीं होगा क्योंकि एट पोटेंशियल एनर्जी 0 होना चाहिए, इसमें तो 0 नहीं है।
नहीं इसमें पोटेंशियल एनर्जी 0 पर कह रहा है कि नेगेटिव हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो ये भी कट गया। नहीं होते। अब ए Yes. और बी में बचा हुआ है, ठीक है। हाँ अब देखते हैं D इज इक्वल टू 0, पोटेंशियल एनर्जी इज 0, तो यहाँ देखो D इज इक्वल टू 0, पोटेंशियल एनर्जी इज 0, पर नहीं, यहाँ तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम बोल रहा है, इसका मतलब ए भी खत्म हो गया। तो बी, यहाँ देखिए, अब बी में चेक कर लो अभी कि D जब 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है, यस ठीक है। उसी समय में देखो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, प्लस माइनस ए में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी 0 है, सो योर आंसर शुड बी बी नंबर। यस। Now, starting from the origin, a body oscillates simple harmonically with a period of 2 seconds. After what time will its kinetic energy be 75% of the total energy? You know, kinetic energy is equal to 75% of total energy, according to the question. हाँ Then kinetic energy is equal to half k into a square minus y square is equal to 75 upon 100 into half k a square. Yes or no? यस। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। तो यू नो हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 3 जा 25 4 3 अपॉन 8 के ए स्क्वायर। हाँ तो 8 के स्क्वायर, यस। तो हाफ के ए स्क्वायर कटेगा। माइनस 3 अपॉन 8 के ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के वाई स्क्वायर। यस। एलसीएम निकाल लीजिए इसका। 5/16 आएगा। 4 के ए स्क्वायर माइनस 3 के ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के वाई स्क्वायर। Then 4k square minus 3k a square, that is the 1k square upon 8 is equal to half ky square. यस सर। 2 से इसको कट कर दीजिए 4, y निकालना है तो k के कट, y is equal to under root of a square by 4, so y is equal to 2. Yes or no? हाँ। For a body starting from the mean position, ठीक है, तो मीन पोजीशन से है तो पहले y इक्वल टू क्या लिखेंगे, a sin ओमेगा t, तो y इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। यस। ये एक कट, sin ओमेगा t इज इक्वल टू हाफ which is equal to the sin pi by 6, so I can say that omega t is equal to pi by 6. Omega is equal to 2 pi upon capital T, and here it is the small t is equal to pi by 6. Then you can say small t is equal to, ठीक है, इसको कट कर दीजिए, become capital T upon 12. pi कट, capital T की वैल्यू कितना दे रखा है 2 सेकेंड, तो 2 upon 12 is equal to 1 upon 6 second answer. So your answer should be B number. Now, if a spring has time period t and is cut into the n equal parts, then the time period of each part will be what? जो इस बच्चे को पता है वो फॉर्मूला वाइज तो डायरेक्ट बता देगा, लेकिन हम लोग लॉजिक की बात करते हैं क्योंकि रट्टा तो मारना नहीं है, ठीक है। यस। तो देखिए, फोर्स कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, यस और नो? फोर्स कांस्टेंट, यस। कांस्टेंट जो होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ स्प्रिंग होता है, यस और नो? तुम कहोगे सर मैं बात नहीं मानना चाहता हूं, तो मेरे पास प्रूफ है, F इक्वल टू माइनस के एक्स, F इज कांस्टेंट हियर, तो x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द k, तो वही मैंने लिखा है, k को ही स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं ना। अगर k जो है फोर्स कांस्टेंट ऑफ द ओरिजिनल स्प्रिंग है, ठीक है, देन द, अगर हम लोग n पार्ट में कट कर रहे हैं तो फोर्स कांस्टेंट ऑफ ईच पार्ट विल बी n बाय k, सॉरी n इनटू k। पहले समझाइए, अगर ये स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, और अगर मैंने इसको n पार्ट में कट कर दिया
तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट जो होगा इच पार्ट का वो क्या होगा, एन के। हाँ समझे या नहीं समझे मेरी बात? यस, लेंथ n फैक्टर से घटा तो हाँ स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ेगा उसके वही फैक्टर हो से। जाता है। तो टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के, ठीक है। एंड सिमिलरली यू नो टी डैश इज इक्वल टू अंडर रूट एम अपॉन एन के। वो जो हम लोग बार बार यही जो फॉर्मूला तुम्हें याद भी कराया था, थ्योरी में बताया था, वो यही था। हाँ अब टी डैश इज इक्वल टू क्या हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के इंटू 1 अपॉन अंडर रूट एन। हाँ तो टी डैश इज इक्वल टू टी अपॉन रूट एन। यस और यस नो, दिस इज योर यस। आंसर। तो आंसर शुड बी बी नंबर। हाँ नेक्स्ट, a spring of a spring constant 5 into 10 to the power 3 Newton per meter is stretched initially by 5 centimeter from the unstressed position. Then the work done to stretch it further by another 5 centimeter is what? देखो x1 कितना है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तक आपने स्ट्रेच किया है, और x2 क्या हो गया, एक्स्ट्रा 5 सेंटीमीटर में 10 सेंटीमीटर हो गया। हाँ तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा, हाफ के इंटू x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। हाँ बट माइनस नहीं आएगा, वो स्प्रिंग क्या बोलो, माइनस नहीं आएगा। हाँ तो माइनस आया ना, x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, वही तो। नहीं वो वर्क में, अच्छा ठीक है। तो क्योंकि देखो सेकंड वाले को वर्क करने में जितना लगेगा माइनस फर्स्ट वाले को जितना लगेगा, तो वो नेट वर्क डन आ जाएगा, अच्छा ठीक है, उस लेंथ का। हाँ तो हाफ इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 0.10 होल स्क्वायर माइनस 0.05 होल स्क्वायर, ठीक है। अब सॉल्व कर दीजिए, 5/2 इंटू 10 टू द पावर 3 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए इंटू बी, ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 15 5 जा 75 2 जा तो 75 5 जा अपॉन 2 into 10 to the power 3, answer is here 18.75 न्यूटन मीटर आंसर। तो आंसर कौन सा नंबर हो गया, सी नंबर। नेक्स्ट, a child swinging on a swing in sitting position stands up, ठीक है, पहले वो स्विंग कर रहा था इस तरह से, और फिर अचानक खड़ा हो गया। then the time period of the swing will what, कहता है टाइम पीरियड इसका क्या हो जाएगा। पहली बात देखिए, टाइम पीरियड इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, अंडर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ठीक है। तो the girl and the swing together constitute a perpendicular of time period. The girl stands up, her center of gravity is raised. अगर मान लो गर्ल ये बैठी हुई थी, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं पे था, अगर वो खड़ी हो गई तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो गया, ऊपर चला गया। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिक्रीजेस, तो लेंथ एल डिक्रीजेस। यस, यहां तक समझ में आई बात है। हाँ इफेक्टिव लेंथ डिक्रीज कर जाता है। इफेक्टिव लेंथ डिक्रीज कर जाता है, जब लेंथ डिक्रीज कर गया तो टाइम पीरियड भी डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट में। तो यू कैन से हेंस द टाइम पीरियड डिक्रीजेस। सो आंसर शुड बी बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the length of a simple pendulum executing simple harmonic motion is increased by 21%. The percentage increase in the time period of the pendulum of increased length is what? You know time period t is equal to 2 pi under root L by G. So you can say that t is directly proportional to the L to the power half. परसेंटेज इंक्रीमेंट पूछा गया है, तो डेल्टा टी अपॉन टी, ठीक है, डिफरेंशियल ऑपरेटर लगाया मैंने,
into 100 is equal to half into delta L by L into 100, यही ना करते हैं? Yes. अब सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, हाफ इंटू डेल्टा एल बाय एल इंटू 100 कितना है, कितना परसेंट लेंथ में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 21%। तो 21/2 कितना हो गया, 10.5%। 10.5 तो कोई नहीं है, डी नंबर 10% है, तो अप्रोक्स आंसर डी नंबर। Yes. A cylindrical block of wood density is 650 kg per meter cube of base area 30 centimeter square and height is 54 centimeter, floats in a liquid of density 900 kg per meter cube. The block is depressed slightly and then release, मैंने ऐसे दबा के छोड़ दिया. The time period of the resulting oscillations of the block would be equal to that of a simple pendulum of length. ठीक है, सपोज कीजिए कि h लेंथ जो है वो लिक्विड में वो पेंडुलम सबमर्ज्ड हुआ है, तो नीचे वेट काम करेगा mg, Yes. ऊपर की तरफ फ्लोटिंग फोर्स लगेगा जिसको बायोन्स फोर्स भी बोल सकते हैं हम लोग. Yes. तो mg इज इक्वल टू बायोन फोर्स. ठीक है, तो m कितना है, डेंसिटी है 650, तो मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, क्योंकि रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो मास इक्वल टू रो इनटू v, और रो इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ. तुम लोग क्या लिख सकते हैं, रो ए एच, रो कितना है 650, एरिया ए है, एच कितना है 54 सेंटीमीटर, तो 54 इंटू 10 टू द पावर -2, ठीक है, Yeah. इंटू जी. एफ बी कितना होगा, फोर्स यहाँ पे डेंसिटी कितना है 900 इंटू एरिया इंटू हाइट इंटू जी, ये ना हुआ. हाँ, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, ए और ए को कट कर दिया, जी एंड जी इज कट, h is equal to 650 into 54 into 10 to the power -2 upon 900. ठीक है, अब इसको कट कर देते हैं, 0 0 कट, 5 1 जा 5, 5 8 जा 5, 13 जा 6 3 जा 6 9 जा 3 से इसको कट कर दीजिए, 13 into 3 39 into 10 to the power -2, that is the 39 centimeter. Your answer should be C number. Yes, sir. Next question. सर आपने बायोन फोर्स इक्वल करके डायरेक्टली कर दिया. हाँ, बायोन फोर्स इक्वल करके मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया. Okay. A spring of force constant K is cut into the two pieces such that one piece is the double the length of the other. Then the long piece will have a force constant of what? देखो, फोर्स कांस्टेंट K इज इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन X. Yes. Length of the long piece is, करा one piece is double the length of the other. 2:1. The length of the long piece is equal to स्प्रिंग ऑफ, पहले देख लो, समझो पहले, ये x है पूरा. Yes. और इसको कट किया गया है टू पीसेस सच दैट वन पीस इज डबल द लेंथ ऑफ द अदर, वन पीस का डबल, तो इसका मतलब टोटल 3 पार्ट हुआ. अगर ये x बाय 3 हो गया तो यहाँ से यहाँ 2x बाय 3 हो गया ना, तो लॉन्ग पीस का लेंथ कितना हो गया 2x बाय 3. ठीक है, न्यू फोर्स कांस्टेंट क्या होगा, k डैश इज इक्वल टू फोर्स अपॉन 2x अपॉन 3. आंसर शुड बी 3f अपॉन 2x. ठीक है, तो 3/2 k. 2 into k. Answer is B number. Next question. A simple pendulum has a time period t1 when on the earth surface and t2 when taken to a height h above the earth surface, where r is the radius of the earth.
the value of T2 upon T1 is what? ठीक है, पहली बात देखो, z डैश अपॉन g इक्वल टू क्या होता है, r अपॉन r प्लस h होल स्क्वायर, दैट इज द r प्लस r होल स्क्वायर, 1/2 r plus r whole square, हाँ या t is inversely proportional to the g, क्योंकि r above the r surface बोला है ना, इसीलिए, ठीक है। देन यू नो T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट g अपॉन g डैश, तो अंडर रूट 4 अपॉन 1 इज इक्वल टू 2, सो आंसर इज डी नंबर। करके देखिए इसको अच्छे से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। The period of oscillations of simple pendulum of length L suspended from the roof of a vehicle which moves without friction down an inclined plane, all of inclination is alpha here. या ऐसा है फिगर में देखिए, हाँ बिल्कुल, तो G इसका डाउन में लगा, जी डाउनवर्ड्स, वेट नीचे लगता है ना। हाँ अब ये जी अल्फा डाउनवर्ड, एंगल से तो है, तो ये क्या हो गया, G यहाँ पे जो अल्फा एंगल से यहाँ पे है, और एक G पहले ये लग गया G cos अल्फा, ठीक है, नॉर्मल टू द इंक्लाइन प्लेन। सर जी cos अल्फा उस साइड है या नीचे होगा cos अल्फा? जो वही मैं देख रहा हूँ, वेट इसका नीचे काम कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे G इधर डाउन की तरफ लगा, ये अल्फा एंगल है तो ये भी अल्फा एंगल होगा। Here it is the mg cos alpha and here it is the mg sin alpha, यस, ठीक है। तो कह रहा है L suspended from the roof pendulum moves without friction and inclined plane of inclination is alpha, ठीक है। तो T is equal to क्या हो जाएगा, T equal to 2 pi अंडर रूट L अपॉन G नहीं होगा, G डैश हो जाएगा, ठीक है। जी डैश, तो G डैश कौन सा होगा, G डैश इज इक्वल टू G cos alpha डाउनवर्ड, क्योंकि the effective value of G will be equal to the component of normal to the inclined plane, या ठीक है। तो you know it is the 2 pi under root L upon G cos alpha, so answer should be A number. जी Next, डैश इज इक्वल टू जी cos अल्फा, तो cos अल्फा वाला पार्ट ही आएगा, ओके। a simple pendulum has time period is T1. The point of suspension is now moved upward according to the relation y equal to kt square, where k is equal to 1 meter per second square, where y is the vertical displacement. The time period now becomes T2. The ratio of T1 square upon T2 square is equal to what? You know y is equal to kt square. तो velocity is equal to क्या हो जाएगा, dy by dt, which is equal to 2 kt. Acceleration is equal to, you know, और ये क्या था, velocity. वेलोसिटी, Acceleration क्या होगा, double differentiation of y with respect to time. यस सर, So you know here it is the 2k, so 2 into 1 become 2 meter per second square. G2 is equal to, you know, G1 plus 2, ये ना कह रहा है, ठीक है। तो you know G1 is equal to 10 plus, here it is the 2 become 10 plus 2, 12 meter per second square. यस, Time period T is equal to 2 pi under root L upon G, और T is inversely proportional to the G root G. तो क्वेश्चन क्या है, T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर इज इक्वल टू G2 अपॉन G1, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो G2 इज इक्वल टू 12, G1 इज इक्वल टू 10, so 2 5s are 2 6 are become 6 upon 5. यस सर, This is the B number. एंड टाइम पीरियड तो The इसके x-ray graph of a particle undergoing simple harmonic motion is shown below. The acceleration of the particle at t equal to 4/3 second is what? देखिए t is equal to 8 second, ऐसा दिख रहा है, so you know omega is equal to 2 pi upon capital T,
is equal to 2 pi upon 8 is equal to pi upon 4 radian, and time is equal to 4/3 second. So omega into t is equal to pi upon 4 into 4 upon 3. 4 cut become 5 upon 3 radian. Acceleration is equal to minus omega square a sin omega t. So minus pi upon 4 whole square into 1 amplitude into sin omega t, that is the sin pi by 3. So minus pi square upon 16. sin pi by 3 की वैल्यू क्या होती है? 3/2. 3/2. So answer is minus root 3 pi square upon 32 centimeter per second square. So answer should be D number. Now the mass m shown in the figure oscillates in simple harmonic motion with amplitude is a. The amplitude of the point P is what? You know, x1 plus x2 is equal to total amplitude. Internal force in the two springs are the same. F1 is equal to F2. So I can write here K1 x1 is equal to K2 x2. हाँ बोलिए क्या कह रहे थे? F1 is equal to F2 कैसे निकाला आपने? क्योंकि देखो इसमें जितना फोर्स तुम इधर से लगाओगे उतना ही फोर्स इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, क्योंकि ये सीरीज में है. तो सीरीज में, हॉरिजॉन्टल सीरीज में जब रहता है तो क्या होता है? इंटरनल दोनों स्प्रिंग में सेम सेम रहता है. ठीक है. तो यू कैन से दैट K1 x1 इज इक्वल टू K2 into a minus x1. ठीक है. तो K1 x1 plus K2 x1 is equal to K2 into a. So x1 is equal to x1 into K1 plus K2 is equal to K2 into a. So you know x1 is equal to K2a upon K1 plus K2. So answer is D number. Now two pendulums have a time period t and 5t/4. They start SHM at the same time from the mean position. What will be the phase difference between them after the bigger and pendulum completed one oscillations? कितना इजी क्वेश्चन है. पहले चेंज इन फाई इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता था? 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इनटू चेंज इन स्मॉल टी. सो यू नो 2 पाई अपॉन कैपिटल इनटू चेंज इन टाइम पीरियड कितना है यहाँ पे? 5t/4 माइनस टी. ठीक है, t/4. ठीक है, आफ्टर द कंपोजिशन कह रहा है ना. तो यू नो 2 पाई अपॉन टी इंटू 5t माइनस 1t, 4t/4 बिकम t. ठीक है, तो t/4 आएगा ना. रुक जाओ. t and 5t/4 तो t/4 आएगा. ये t होगा ना, ये होगा ना, t होगा. t/4. t/4 तो 5t माइनस 4t बिकम t/4. t कट 2 से इसको कट कर दीजिए. आंसर इज π/2. आंसर इज 90 डिग्री. बी नंबर. ठीक है. नेक्स्ट. यस सर. If the frequency of oscillations of a particle doing SHM is n, the frequency of kinetic energy is equal to what? तो in one oscillations क्या होता है? Twice हो जाता है, twice. So you should say that the frequency of kinetic energy is equal to twice of frequency. ठीक है, तो become 2n. Answer is A number. Yes sir. A spring which has the spring constant K is cut into the 4 equal parts and 2 parts are connected in parallel. ठीक है. So what is the effective spring constant? देखो, spring constant of each one fourth part is equal to 4K. अगर ये spring है, इसको 4 पार्ट में आपने कट किया है. ठीक है, तो एक पार्ट का क्या होगा? 4 times of K. ये ना रूल होता है. 2 को पैरेलल में जोड़ा हुआ है, तो इफेक्टिव पैरेलल स्प्रिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या होगा? 4K प्लस 4K, तो बिकम 8K. आंसर इज सी नंबर. नाउ
A mass m is suspended from a spring. Its frequency of oscillation is f. The spring is cut into two halves and the same mass is suspended from one of the two pieces of the spring. The frequency of oscillations of mass will be what? पहले देखिए फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, 1/2 पाई अंडर रूट के अपॉन एम. यस और नो? जब इसको हमने दो माना हाफ में, टू हाफ्स में जब डिवाइड कर दिया तो उसकी स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो गई ईच पार्ट की 2k. मैं इसको बार बार लिखता हूँ. देखो ये स्प्रिंग को आपने 2 पार्ट में कट कर दिया तो ईच पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट 2k होता है. यस और नो? या. तो यू न्यू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट 2k अपॉन m. यस और नो? बिल्कुल. यस. I can write here √2 टाइम्स ऑफ f, क्योंकि ये देखो ये पूरा तो f ही है, ये √2 को सिर्फ अलग कर दीजिए तो देन योर आंसर इज a. तो लॉजिक क्या है इस क्वेश्चन का? लॉजिक ये है कि पहले जो मेन फंडामेंटल फॉर्मूला को लिख लीजिए और सारे सिचुएशंस के लिए एक नया फॉर्मुलेशन कर लीजिए और दोनों को कंपेयर कर दीजिए. क्लियर है? ओके. यस सर. ये 3 स्टेप में हो जाएगा. हाँ, 2-3 स्टेप में हो जाएगा, अदरवाइज लंबा चलेगा काफी. Simple motions are represented by y1 is equal to 5 sin 2 pi t plus √3 cos 2 pi t. Yes. And y2 is equal to 5 sin 2 pi t plus pi by 4. The ratio of the amplitude of 2 SHM is what? ठीक है. Yes. तो देखो मैं इसमें फॉर्मूला सब ब्रेक करूंगा. ठीक है. तो y1 is equal to 2, देखो sin 2 pi t क्या हो गया 2 sin pi t इंटू cos pi t. 2 को बाहर कर दीजिए तो 5 इंटू 2 sin pi t. ठीक है. इंटू cos pi t. ठीक है. प्लस √2 cos 2 pi t है. तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो पहले हम लोग इसी को लिख देते हैं ना sin 2 pi t. 1 मिनट रुक जाओ यार, ये तरीका थोड़ा ठीक नहीं लगेगा, दूसरे तरीके से करते हैं. इस मेथड से देखो क्या करो 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. ऐसा करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. ठीक है. प्लस √3/2 cos 2 pi t. यहां तक क्लियर हुआ? आप मेरे से ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने की कोशिश कर रहा हूं और यहाँ मुझे 2 pi t दिख गया ना, इसलिए ऐसा कर रहा हूं मैं. ठीक है. तो 5 2 जा 10 and sin a into cos b plus cos a into sin b becomes sin a plus b. तो sin 2 pi t plus pi upon 3. yes or no? सर pi upon sin के लिए pi upon 6 होगा. हाफ की वैल्यू, हाफ जो है cos pi by 3 sin pi by 3 की वैल्यू तो होती है. cos pi by 3 की वैल्यू होती है. हाफ क्या होती है? हाफ जो है ये cos 60 डिग्री हो गया, √3/2 sin 60 डिग्री हो गया. ये तो मैंने किया, इसलिए तो sin a plus b लगाया. ठीक है. ठीक है. यस सर. ओके. एंड y2 is equal to here 5 sin 2 pi t plus pi by 4. तो दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है? इसका एम्पलीट्यूड है 10, इसका एम्पलीट्यूड है 5. तो एम्पलीट्यूड a1 upon a2 is equal to 10 upon 5. So answer is the 2:1. C number. क्लियर है? यस सर. नेक्स्ट एक बार लिख के कर लीजिए एक बार. Now if both spring constants K1 and K2 are increased to 4K1 and 4K2 respectively, then new frequency in terms of original frequency F is what? देखो अगर आप फोर्स F टोटल फोर्स निकालना चाहते हो तो F1 plus F2 लिखना पड़ेगा. yes or no? That is the minus K1x plus minus K2x. minus is common, x is common, so K1 plus K2 into x. And effective K is equal to K1 plus K2.
So frequency is equal to 1 upon 2 pi under root K1 plus K2 upon M. When spring constant increased 4 times, then new frequency is equal to, 1 upon 2 pi under root 4 K1 plus 4 K2 upon M. Yes or no? Twice 1 upon 2 pi under root K1 plus K2 upon M. So you can say that this is the 2F. Answer is B number. Yes, sir. Next. The spring constants of 3 springs connected to a mass M. When mass capital M oscillates, what are the effective spring constant and the time period of vibrations? ठीक है, पहली बात देखो, लोअर पार्ट में 2 स्प्रिंग इस तरह से कनेक्टेड हैं, एक एक की स्प्रिंग कांस्टेंट K है और ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो इसकी इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट कितनी हो जाएगी? K प्लस K बिकम 2K। तो हमने यहाँ पे लिख दिया इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट 2K है, मास M है और ऊपर वाले की तो 2K थी ही थी। यस और नो? हाँ, ऊपर वाले का 2K। मैं क्या कर सकता हूँ, इन लोअर पार्ट पैरेलल स्प्रिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू K प्लस K इज इक्वल टू 2K। हाँ, ठीक है। Now we have the 2 springs which have the same spring constant 2K and these are connected in series. So effective spring constant in series is equal to K1 K2 upon K1 plus K2. yes. So 2K plus 2K into 2K upon 2K plus 2K become 4K square upon 4K. 4K। Okay. हाँ, तो ये अपने सीरीज फॉर्मूला वाला लगा है। हाँ, तो टाइम पीरियड T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट M अपॉन K। हाँ, ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए? एक K होगा और दूसरा 2 पाई अंडर रूट M बाई K। 4। ये तो ऑप्शन में कहीं है ही नहीं, सो डी नंबर इज नन None ऑफ of these। आंसर। Yes। You know, a block rests on a horizontal table which is executing SHM in the horizontal plane with an amplitude of A. इसका मतलब ये आगे पीछे कर रहा है horizontal table पे। If the coefficient of friction is mu, then the block just start to slip when the frequency of oscillations is। ठीक है, देखो जब ब्लॉक जस्ट स्लिप करेगा तो उस समय जो स्प्रिंग ये फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा वो क्या होगा? MA मैक्स। MA मैक्स। फोर्स F इक्वल टू क्या होता है? म्यू R इक्वल टू क्या होता है? mg। तो म्यू mg इज इक्वल टू M इंटू A मैक्स। यस और नो? यस सर। तो M into A max। mg इज इक्वल टू M इंटू एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड is equal to M into 2 pi nu whole square into A। फ्रीक्वेंसी को मैं कभी n लिखता हूँ, कभी न्यू लिखता हूँ, कभी f लिखता हूँ, जैसा जैसा होगा, इसलिए घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो यू नो m and m कट, तो मैं पहले लिख लेता हूँ म्यू mg इज इक्वल टू m इंटू 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर इंटू A। m and m इज कट। ठीक है, फ्रीक्वेंसी स्क्वायर न्यू स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू g अपॉन 4 पाई स्क्वायर A। So mu is equal to under root of this means 1 upon 2 pi under root mu g upon A. Yes, exactly. Then answer should be A number. Option A. Next question. The graph of time period of a simple pendulum versus its length. ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन है। टाइम पीरियड है तो T is directly proportional to the root L होता है। T is directly proportional to T square is directly proportional to the L। हाँ, इसका मतलब क्या? ग्राफ बिटवीन T and L be parabolic symmetric।
अबाउट द टी एक्सिस, ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए। पैराबोलिकली तो सिमेट्रिकल, ऑप्शन ऑप्शन इज ए नंबर। नेक्स्ट, the length of a second pendulum at the surface of earth is 1 meter. The length of the second pendulum at the surface of moon, where g is 1/6 that of the earth surface. ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। सेकेंड पेंडुलम है तो टाइम पीरियड क्या होगा, 2 सेकेंड्स। सो यू नो Yes. lm अपॉन gm is equal to le upon ge. Yes or no? LM upon GM, हाँ LE upon G, yes sir. ये समझ में आया या नहीं आया? हाँ समझ गया, ठीक है, मेक सेंस। क्योंकि देखिए लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज 1 मीटर, द लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम एट द सरफेस ऑफ मून वेयर जी इज 1/6 दैट ऑफ द हाँ अर्थ। तो इन दोनों के प्रोपोर्शनलिटी निकालना है। ठीक है, तो lm इज इक्वल टू क्या होगा, लेंथ ऑन मून क्या होगा, तो gm अपॉन ge इंटू gl इंटू le, लेंथ ऑन अर्थ। gm अपॉन ge का रेशियो क्या होता है, 1/6, सो 1/6 ऑफ le। आंसर इज ए नंबर। इसका मतलब जिस सेकेंड्स पेंडुलम का टाइम पीरियड यहाँ लेंथ यहाँ पे 1 मीटर होता है, उसका वहां पे 1/6 मीटर हो जाएगा। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, यही क्वेश्चन में बच्चे फंसे थे तो वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। इसको जो है दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ने पूछा था इसको 2002 में। द मास एंड द रेडियस ऑफ अ प्लेनेट आर ट्वाइस दैट ऑफ अर्थ। ठीक है, then period of oscillations of second pendulum on that planet will be what? कितना इजी है, तो पहले अर्थ पे देख लो, क्या करोगे, अर्थ पे g is equal to gm upon r square, yes or no? यस बिल्कुल। But on planet I can write here g dash is equal to g into twice of mass कह रहा है और twice of radius कह रहा है, 2 square 4, तो ये 2 कट गया तो क्या बचा, gm अपॉन r स्क्वायर इंटू 1/2, सो आई कैन राइट हियर g/2। ठीक है, t डैश अपॉन t इज इक्वल टू अंडर रूट g अपॉन g डैश। ठीक है, यस। इज इक्वल टू अंडर रूट g अपॉन g/2, g कट अंडर रूट 2, सो नाउ t डैश इज इक्वल टू t इंटू रूट 2। ठीक है, time period is the 2 second and here it is the root 2, become answer is 2 root 2 second, B number. यस। Next, very very important question. ठीक है, यस स्मार्ट। a simple pendulum oscillates in a vertical plane. ठीक है, देख लीजिए बेटा, ये आपके पास सिंपल पेंडुलम है, ये बॉब है, इसको आपने ऐसे किया है। When it passes through the mean position, the tension in the string is 3 times the weight of the pendulum bob. कितना इंटरेस्टिंग है, मतलब जब ये इक्विलिब्रियम से होके पास करता हुआ जा रहा है उस समय में मीन पोजीशन जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वहां पर t इक्वल टू 3 mg हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ इन मीन पोजीशन। यस। यहां तक समझ में आया मेरी बातें? यस सर समझा। What is the maximum displacement of the pendulum of string with respect to the vertical? ठीक है, तो सपोज कर लो थीटा एंगल पे यहाँ पे इसकी टेंशन T है, नीचे वेट mg काम करेगा, इसकी वेलोसिटी इधर होगी, लेंथ ऑफ स्प्रिंग जो है वो L है, यहाँ से यहाँ लेंथ h है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, नेट फोर्स यहाँ पे क्या होगा बताओ, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू टेंशन T माइनस mg which is the centripetal force, that is the mv square upon L, yes or no? हाँ 1 मिनट सर, नेट फोर्स तो सेंट्रीपिटल फोर्स ही होगा, अदरवाइज उड़ जाएगा। हाँ सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, और स्प्रिंग में जो मतलब स्ट्रिंग में, सॉरी मैं स्प्रिंग बार बार बोल रहा हूँ, स्ट्रिंग में ऊपर टेंशन होगा नीचे mg होगा, तो दोनों का इफेक्टिव क्या हो गया, T माइनस mg। यस सर। तो T हमारा यहाँ पे 3 mg है, तो 3 mg माइनस mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन L, become 2 mg is equal to mv square upon L, m and m cut, so v equal to under root 2 gl। ठीक है,
ये तो वेलोसिटी आया, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पेंडुलम। हाँ तो देखो यहाँ पे थीटा एंगल है, ठीक है, तो हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो है वही पोटेंशियल एनर्जी में ट्रांसफर करेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू एम जी इंटू एच। एच मीन्स क्या हो गया, एल माइनस एल कॉस थीटा। देखो हाँ यस सर। एल है और ये वाला पार्ट क्या हो गया, एल कॉस थीटा, थीटा एंगल है तो ये एल हमारे पास है, तो ये वाला पार्ट एल कॉस थीटा हो गया। टोटल हमारे पास एल था, इसमें एल कॉस थीटा माइनस कर दिया, ठीक है, यही हमारा हाइट आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ठीक है। ये मैं वर्टिकल कैसे मैंने किया वो मैं बताता हूँ। ऑल काइनेटिक एनर्जी आर चेंज इनटू द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इसीलिए मैंने ऐसा लिखा, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम जी इंटू एल माइनस एल कॉस थीटा। कैसे, थोड़ा सा इसको फिर से ध्यान दीजिए, पूरा एल है, ये भी एल है, इसका ये थीटा है, तो ये एल कॉस थीटा यहाँ से यहाँ तक हो गया, तो टोटल हमारा एल है और एक्चुअल में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो है वो एच है, ठीक है। तो एच इज इक्वल टू यू नो टोटल डिस्टेंस एल माइनस एल कॉस थीटा। अब एम और एम को कट कर दीजिए, तो हाफ इंटू वी स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, अंडर रूट 2gl, वी का वैल्यू था तो स्क्वायर कर दिया, तो ये हो गया 2gl इज इक्वल टू जी इंटू एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 2 कट, जी कट, एल कट, ठीक है। तो यू नो 1 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, तो cos theta is equal to 1 minus 1 becomes 0. So theta is equal to cos inverse 0 become 90 degree. 90 And degree. answer is D number. ये बहुत Yes. इंपॉर्टेंट है, पहले रुक के पहले सॉल्व कर लीजिए फिर आगे बढ़िएगा। A pendulum suspended from the roof of an elevator at rest. पहले एलिवेटर बना देते हैं, इसमें यहाँ पे एक पेंडुलम को सस्पेंड कर दिया मैंने, suspended from the roof of an elevator at rest has a time period t1. When the elevator moves up with an acceleration is a, its time period becomes t2. When the elevator moves down with an acceleration a, its time period become t3. जब रेस्ट में था t1, जब ऊपर जा रहा था t2, जब नीचे आ रहा था t3. T3. तो कह रहा है रिलेशन बिटवीन द t1, t2, t3 is what? First one, when it is at rest, then I can say t1 is equal to 2 pi under root L upon g. Yes or no? Yes. मैं क्या कॉन्सेप्ट लगाऊंगा समझो, मैं तो देखो यहाँ पे जब लिफ्ट ऊपर नीचे जा रही है, एलिवेटर नीचे से ऊपर जा रही है, तो सिर्फ इसमें जी और ए के बीच का ही रिलेशन होता है, तो मैं जी और ए को ही वर्किंग में यूज करूंगा। तो जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो जी इज इक्वल टू यू नो स्क्वायर कर दिया तो 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन t1 स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली t2 इज इक्वल टू यू नो 2 पाई अंडर रूट, जब नीचे से ऊपर जा रहा है तो l इंटू जी प्लस ए, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन t2 स्क्वायर इज इक्वल टू जी प्लस ए। यस और नो? जब डाउन आ रहा है तब क्या लिखेंगे, t3 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी माइनस ए, और 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन t3 स्क्वायर इज इक्वल टू जी माइनस ए। यस और नो? अब ऐसा करते हैं, t2 और t3 को ऐड कर देते हैं। पूछो ऐसा क्यों किया, क्योंकि माइनस ए प्लस ए कट जाएगा और उसको फिर t1 के टर्म में हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तो यू नो 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन t2 स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन t3 स्क्वायर is equal to g plus a plus g minus a cut become 2g. 2g. Yes. Sir. Is equal to 2 into 4 pi square L upon t1 square. Clear है? Yes sir.
तो ये हमारा क्या हो गया T2, नहीं सॉरी G के टर्म में भी लिखा है ना, फिर T1 T2 के टर्म में लिखूंगा। तो ये हमारे पास बचा, जो कॉमन पार्ट है कॉमन लेके हटा दीजिए आप, ठीक है, अच्छा कॉमन पार्ट हटा देना है इसको। कॉमन पार्ट हटा देना है, और T1 T2 T3 के टर्म में लिख देते हैं सबको। तो क्या लिखूंगा मैं, 4 pi square L is common in all these. So 1 upon T2 square plus 1 upon T3 square is equal to 2 upon T1 square. Yes or no? यस सर। ऐसा रिलेशन दिया नहीं है, थोड़ा मैनिपुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, T2 square into T3 square. Here T3 square plus T2 square is equal to 2 upon T1 square. So T2 square into T3 square upon T2 square plus T3 square is equal to T1 square upon 2. T1 square upon 2, हाँ। 2 को इधर लेते आइए, स्क्वायर है तो रूट कर दीजिए। So T1 is equal to under root 2 into T2 T3 upon under root of T2 square plus T3 square. ऐसा दिया होगा। तो ये आंसर देखिए तो है क्या, हाँ है, तो रूट T2 T3 upon T2 square plus T3 square. So answer is C number. हाँ। If a simple pendulum of length L has maximum angular displacement, ठीक है, मैक्सिमम एंगुलर the maximum kinetic energy of bob of mass m is, ठीक है। देखो जब सिंपल पेंडुलम है, ये मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जब करेगा, इसका मतलब क्या होगा कि मैक्सिमम जाके वहां रुक जाएगा। तो इस सिचुएशन में आप क्या लिखेंगे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मैक्सिमम पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mg into h max इज इक्वल टू mg l into, जैसे पहले किया था, L minus L cos alpha, so 1 minus cos alpha। हाँ क्लियर है या नहीं? यस सर, समझ गए। तो ये आंसर इस C नंबर, डायरेक्ट आंसर आ गया। मैं थोड़ा सा इसको फिर बता देता हूँ, देखो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये जब लेंथ L है और ये अल्फा एंगल है, तो ये वाला पार्ट हो गया L cos अल्फा। यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है वो h है, तो टोटल हमारे पास L है, L में से L cos अल्फा को माइनस कर दीजिए तो क्या बचेगा, L इज कॉमन 1 माइनस cos अल्फा, ठीक है। So maximum kinetic energy of the bob is mgl into 1 minus cos alpha. Yes. Question. Which of the following function represents a simple harmonic oscillations? ठीक है। Now y is equal to sin omega t minus cos omega t. लिख लिया, पहले इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो dy by dt is equal to ओमेगा cos ओमेगा t माइनस माइनस प्लस ओमेगा sin ओमेगा t। यस और नो? ओमेगा sin ओमेगा t। आपको पता है कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन है, इसके लिए एक्सीलरेशन निकालना पड़ता है, तो फिर से डिफरेंशिएशन कर दीजिए, d2y by dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t, ठीक है, प्लस ओमेगा स्क्वायर इनटू cos ओमेगा t। So minus omega square is common, becomes sin omega t minus cos omega t is equal to minus omega square y। देखो तो इसका मतलब फर्स्ट वाला ही जो है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस में है। क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, इसीलिए ऐसा लिखा मैंने। यस सर। बहुत बार ऐसा होगा कि फर्स्ट वाला नहीं होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, कुछ इस तरह का। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या है कि पहले आपको एक चेक कर लोगे तो आइडिया देखना कि अपना ना सिक्स सेंस लगाइएगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन हम सॉल्व करें तो जिससे जल्दी होने का चांस रहे। अच्छा, अदरवाइज बहुत बार बच्चों का टाइम इसी में किल हो जाता है, वो चारों करने बैठ जाते हैं, पता चला डी किसी का ऑप्शन है तो उसने ए किया, फिर बी किया, फिर सी किया, फिर बाद में पता चलता है डी है। जब सी तक हो जाता है फिर बच्चा ना चांस लेता है कि भाई एक बार चेक करके देख लो, तो मैंने बहुत टाइम किल हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस का एक तरीका यही है कि कई पहले देखो सिक्स सेंस क्या कर रहा है। मैंने ना साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी को ही देखा ए नंबर। क्यों देखा?
क्योंकि इसमें मुझे दिख रहा है कि कोई ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो ओमेगा स्क्वायर वाई दिख रहा है। बी हाँ वाला में नहीं दिख रहा था, सी वाले में नहीं दिख रहा yes था, इसलिए मैंने ये कहा। लेकिन ये जो मुझे दिख रहा है वो सारे बच्चे को दिखेगा ये जरूरी नहीं है, ठीक है। yes मेरा understand हाँ एक्सपीरियंस है जिसके कारण मुझे जल्दी दिख रहा है। नाउ two simple harmonic motions are represented by y1 is equal to 4 sin 4 pi t plus pi by 2 and y2 is equal to 3 cos 4 pi t, ठीक है। The resultant amplitude is what? कितना इजी है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो a1 स्क्वायर कितना हो गया 4, सो 4 स्क्वायर, a2 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू, ठीक है। अब फाई की वैल्यू क्या होगी, अब देखो cos 4 पाई टी को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin 4 पाई टी प्लस पाई बाय 2, ठीक है। sin 4 pi by हाँ t लिख plus सकते, pi by 2 तो इसका हाँ मतलब दोनों का फेज डिफरेंस 0 है, तो cos 0 डिग्री। बच्चे बहुत बार गलती क्या करते हैं, वो डायरेक्ट पाई बाय 2 लिख देते हैं। नहीं बाबू, दोनों को सेम में लाओ, ये भी साइन है, इसको भी साइन मिलाना पड़ेगा आपको, तब cos 0 डिग्री। yes sir मैंने बहुत बच्चे को गलतियां क्या करते देखा है, वो डायरेक्ट देता है सर यहाँ पाई बाय 2 है, यहाँ 0 है सर, तो आंसर पाई बाय 2 गया, cos पाई बाय 2 ले लेते हैं, पर ऐसा नहीं लेना है। okay 4 स्क्वायर इज 16, 3 स्क्वायर इज 9, cos 0 की वैल्यू 1, 4 2 जा 8, 3 जा 24, तो बिकम अंडर रूट 49, सो आंसर इज 7, ए नंबर। क्लियर है। yes sir नेक्स्ट, a particle executes simple harmonic motion of period t and amplitude L along a rod AB of length 2L. The rod AB itself executes simple harmonic motion of the same period and amplitude in a direction perpendicular to its length. Initially, both the particle and the rod are in their mean positions. The path traced out by the particle will be what? पहले समझो मेरी बात। हाँ ये सिंपल पेंडुलम है और SHM इसका दिख रहा है, तो x एक्सिस में SHM क्या होगा, तो इसका लेंथ क्या है L, तो I can say that L sin omega t, and you know the rod execute the SHM perpendicular to its own length. हाँ Then y is equal to, I can say L cos omega t plus phi naught. yes Yes or no? बिल्कुल Both हाँ the particle and rod passes through हाँ mean position. मैं लिख, now both the particle and the rod passes to the mean position pass through the mean position initially. Mean position initially. So I can say that x is equal to y, which is equal to 0 at t is equal to 0, and phi naught is equal to, you know, जब 0 है तो क्या हो गया pi by 2. yes And your answer should be phi naught जब pi by 2 हो गया है तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। हाँ, आंसर इस फॉर्म में नहीं दिया है ना, तो मैं दिया है कि इसका स्ट्रक्चर भी बताइए, ठीक है। तो y इज इक्वल टू, यू नो, L cos ओमेगा t प्लस पाई बाय 2, cos ओमेगा t प्लस पाई बाय 2 को माइनस साइन, तो माइनस L sin ओमेगा t, तो यू नो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस x, yes sir तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या हो गया माइनस x, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। पहले ये देखो कि y इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, इक्वेशन सर्कल ऑफ रेडियस एल ना, स्ट्रेट लाइन तो दिख रहा है, एंगल फिर क्या होगा पाई बाय 4,
एलिप्स भी नहीं होगा, फिगर ऑफ 8 भी नहीं होगा। हाँ, फिगर ऑफ 8 ये क्या है? अब फिगर ऑफ 8, ऐसा आएगा शायद। हाँ 8 की तरह ना, वो भी नहीं होगा। बी नंबर ऑप्शन लग रहा है, क्योंकि देखिए y इक्वल टू y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x माइनस x, तो मतलब ये स्ट्रेट लाइन हो गया, ठीक है। और हाँ वो -1 हो गया तो cos 1 sin upon cos tan theta मतलब 45 डिग्री। So you can say that here it is the straight line, ठीक है, inclined at pi by 4 to the length of rod. अच्छा। Of rod. So answer is B number. Next question. The velocity vector v and displacement vector x of a particle executing SHM are related as v dv by dx is equal to minus omega square x. So you know v dv upon dx, मैं v को अच्छे से लिख देता हूँ क्योंकि अदरवाइज तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे न्यू लगता है। फ्रीक्वेंसी तो नहीं है। v dv by dx is equal to minus omega square x. With the initial condition v equal to v naught at x equal to 0, the velocity v when displacement at x is what? बहुत easy है। v dv is equal to minus omega square x dx, ठीक है। इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ v dv is equal to इंटीग्रेशन ऑफ minus omega square x dx। कहां से कहां तक? v naught से लेकर v तक, ये ना क्वेश्चन कह रहा है। हाँ। और here 0 to x लेके x तक। इंटीग्रेशन ऑफ v क्या होता है? v स्क्वायर अपॉन 2, लोअर लिमिट इज v नॉट, हायर लिमिट इज v, माइनस ओमेगा स्क्वायर इज कांस्टेंट। x का इंटीग्रेशन क्या होगा? x स्क्वायर अपॉन 2 फ्रॉम 0 टू x, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू x स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर है? तो v स्क्वायर इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आ रहा है क्या? 2, हाँ ठीक है। और ये अपॉन 2 यहाँ भी तो था ना, ठीक है। तो ये हाँ, तो ये 2 और इस 2 को हमने क्या किया? कैंसिल कर दिया। तो v स्क्वायर इक्वल टू v नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हुआ, ठीक है। सो v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ v नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, आंसर, ठीक है। यही तो मैंने देखा था, v इक्वल टू v नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बी नंबर। नाउ दिस लेक्चर इज फिनिश। कमिंग क्लास में हम लोग कंटिन्यू और क्वेश्चंस इसी चैप्टर पे करेंगे। टिल देन, बाय, एज वेल एज बेस्ट ऑफ लक।